Good morning, everyone. Hoping that you all are enjoying the revision session of trigonometry. I know it's a really awesome topic and interesting. At the same time, in case if you understand the topic, the things are going to become really, really very, very good. Okay, right now we are completing almost 3 mark question and we are moving ahead with the 4 mark question. Those are maybe still difficult than this. So what else you have to do in these kind of questions? Let me tell you again. Yesterday there were few students who tried the further question, as I have said, as I have instructed. They tried it. They could do it. Many of you have done the questions with the different methods, which were not up to the mark, but still it was correct, and for getting full scores, it was enough. So that's the reason, this is the way how you can invent new methods of solving the question. They have sent it to me. I was so very happy, considering that yes, my students are able to understand and they're able to derive their own methods to solve the sums. And that was really giving me a feeling of satisfaction. So same I am expecting from each one of you, every one of you rather, that try further questions. Don't just depend on the revision. You can continue solving further questions, so that you will be saving your time and at the same time you will gaining the confidence. Chalo, now let's not waste time. I will be continuing with the revision. 66th question I'm doing it. 66th, you have to prove when an equation is called as identity, when it is true for all the values, all sort of values. Now for an example, if I take 1 plus tan square a is equal to sec square a, this equation will be true for any value of a, then we call it as an identity. Okay, not a specific value of a. So it will be true for any value of the variable, we call it as the identity. I have to prove that कि 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. तो इसके लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं, अपना एक एंगल ट्रायंगल लो ए बी सी, थीटा लो, राइट, थीटा इज ए आई कैन से। ओके, उल्टा करते हैं यहाँ पे क्योंकि ए दिया हुआ है वहाँ पे। तो ये ए, ये बी और ये सी लेते हैं, दिस इज थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, दिस इज माई एल एच एस, 1 प्लस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, विच कैन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, if you check with the triangle, it will be AC square upon AB square. तो AC upon AB the whole square, it would be AC upon AB. AC upon AB, will it be equal to sec theta? Think about it. Yes, it is going to be equal to sec theta. तो sec square theta हो गया, and that is nothing but your RHS. तो हो गया, that's it. ये तो बहुत easy है part to prove this. Okay, there are other ways also to prove it, but आपके लिए बस एक ही काफ़ी है, because the same method you can use for all sort of such questions where you are going to use the identity, prove the identity. You have to prove that 67th question you need to prove that LHS is equals to RHS. So I can take LHS to prove RHS, or I can take RHS to prove LHS. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है RHS is easy to prove to get LHS. कैसे? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. I think it's conjugate multiplication question. So you can multiply by conjugate, तो 1 minus cos theta and ऊपर भी आएगा 1 minus cos theta. As we need a perfect square, I'm not going to unnecessarily expand this bracket. 1 minus cos theta the whole square upon 1 minus cos square theta, that is sin square theta. Okay, so I'll just give the bracket 1 minus cos theta upon sin theta the whole square. This I can split, so it would be 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta. I think that's the RHS. Hope you're clear with 1 minus cos theta cosec theta, cosec theta minus this will be cot theta the whole square. लेकिन प्रूव करने के लिए कुछ और ही बोला है. You are expected to prove cot theta minus cosec theta the whole square, but let me tell you, a minus b the whole square itself is equals to b minus a the whole square. Always remember that these are always equal as there is a square. You can take the values and you will come to know that a minus b the whole square should be equal to b minus a the whole square if it comes to the square. तो trigonometry में ये याद रखो always. तो cot theta minus cosec theta the whole square दोनों सेम ही होते हैं. You can expand and check. ठीक है, तो ये तक तो हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को. आई डोंट वॉन्ट यू टू
अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से 68th क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। करना क्या है, कुछ नहीं, मैं नहीं सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन। आपको करना क्या है मैं बोलता हूँ, जस्ट आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। कोसेक को साइन में कन्वर्ट करो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, टैन एंड कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट यू कैन एक्सपांड इट, you can cross multiply. In this particular bracket you can cross multiply. In the same bracket the next one you have to cross multiply, and believe me you will get your answer easily. 69th क्वेश्चन 90 माइनस है, तो ये तो क्वेश्चन इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। 70th क्वेश्चन हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। 70th क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा इफ आई टेक एलएचएस, कोसेक स्क्वायर थीटा इफ आई टेक कॉमन, ऑलवेज रिमेंबर टू टेक कॉमन, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब ये प्लस 1 क्यों, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो नीचे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक कोसेक गेट कैंसिल, 2 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा एंड ऑल दैट इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। हैव टू प्रूव, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा करने के बाद साइन साइन कैंसिल है, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। तो ट्राई करो खुद से, इजी है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 70th क्वेश्चन ये हमने आपके वर्कशीट में किया हुआ क्वेश्चन है। आई टेक एलएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पहला वाला पार्ट है, तो सिर्फ पहले वाले पार्ट को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बी कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर भी आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, दैट वुड बी 1 अपॉन साइन ए एज इट इज़। तो ये जो होगा दिस वुड बी 1, जो नीचे दिया है ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्यों 1 होगा समझ में आ गया ना, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, माइनस कोसेक ए, दैट्स इट, हो गया। ओके हाँ, लेकिन ये तो आर एच एस नहीं है, आई नो दैट, बट इफ यू सेम वे डू इट फॉर द आर एच एस यू गेट दैट ऑल्सो एज अ कॉट ए। ओके, ओनली टेक केयर ऑफ माइनस साइन, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से, टेक केयर ऑफ माइनस साइन, और कुछ नहीं बोलता मैं। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, मैं पर्पजली सारे के सारे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको तो वो पता है। 72nd क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक थीटा इज गिवन, सेक एक्स इज गिवन इज एक्स प्लस 1 अपॉन 4x। आपको फाइंड करना है सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सेक एक्स तो मेरे पास है, टैन एक्स फाइंड करना है यूजिंग सेक एक्स। तो व्हाट इज टैन एक्स सेक एक्स में कैसे होता है, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब पहले सेक स्क्वायर एक्स फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर। तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल, 2 1 2 2 4। तो योर आंसर फॉर सेक स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर। आई नो इट इज़ क्वाइट वियर्ड, बट तो करना तो पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 1। तो हाफ माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर। इफ यू want tan x, then this should have this part should be a perfect square, and I know that it is a perfect square of 1 upon x minus 1 upon x minus 1 upon 4x the whole square है ये। क्यों ऐसे लगा मुझे, क्योंकि ये ज़रा देख लो ठीक से, ये x प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर है, तो ये सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है यहाँ पे, दैट्स द रीज़न ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। तो यही इसी से पता चला, देखो इसमें और इसमें रिजेम्बलेंस है। Okay, considering that I understood that it is x minus 1 upon 4 is the whole square. So therefore, what is tan of x is equals to, अभी रूट निकालना पड़ेगा हमें दोनों तरफ का। तो when we take a root of both the side, I have to take one plus or minus. So x minus 1 upon 4x the whole square आएगा। तो this is going to become, देखो if I use plus inside, if I take plus inside, तो I get tan x is equals to, देखो tan x is equals to, देखो try to understand, two values I get. Okay, tan x इज इक्वल टू एक्स माइनस, अच्छा रूट निकाल दिया है मैंने, x माइनस 1 अपॉन 4x, और tan x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 4x. तो इफ आई यूज दिस आंसर टू फाइंड sec प्लस tan, आई गेट 2x, एंड इफ आई यूज दिस आंसर टू फाइंड sec प्लस tan, आई गेट 1 अपॉन 2x. दैट्स इट, आंसर डन है। बहुत सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यस
यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। तो स्क्वायर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। 73rd क्वेश्चन ईजी है, आप लोग खुद से कर सकते हो इफ़ यू रियली विश टू ट्राई दैट क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आप लोग खुद से करो ये क्वेश्चन, ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं हिंट, बेसिक हिंट देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 74th क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग। देखो 74th, आई टेल यू द क्वेश्चंस, वॉट एवर क्वेश्चंस यू विल गेट इन द पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ, एवरीथिंग विल बी सिमिलर टू दिस वर्कशीट, सिमिलर टू दिस वर्कशीट, ऑल द क्वेश्चन। सो एक बार ये कर दोगे ना तो आपका 90% ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। मेरे पास इस, ये तो 100 क्वेश्चन है, मेरे पास और 200 क्वेश्चन है जो दे आर डिफरेंट देन दिस, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन दिस। तो जब आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो मैं और 200 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, चलो ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन राइट नाउ दिस इज मोर देन सफिशिएंट, अभी आप जो कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये किया हुआ क्वेश्चन हमने, साइन क्यूब थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड वाई साइन थीटा, सॉरी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये एलिमिनेशन मेथड के जैसा करना है, या फिर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है तो हमें एक्चुअली करना क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे करना क्या होगा यहाँ पे, मुझे बस एक चीज़ करनी है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देना है, क्योंकि दो इक्वेशन दिए हुए, ये एक इक्वेशन है, वो एक इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू इसमें ये है तो ये इसमें पुट कर देता हूँ मैं। पुट करने के लिए इट वुड बी डिफिकल्ट, बट वंस यू पुट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो वी हैव एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, आई कैन टेक कॉमन कॉस थीटा, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, साइन क्यूब नहीं चला गया। तो वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, आई एम लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स दैट इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा गेट कैंसिल, ये तो 1 आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वाई साइन थीटा हो गया। सिमिलरली इफ़ आई पुट दिस वाई इज इक्वल टू साइन थीटा इन दिस, यहाँ पे अगर वाई की जगह पर साइन थीटा डाल दिया, यहाँ पे देखो इन दिस पर्टिकुलर वाई की जगह पर साइन थीटा डाल दिया एक्स की जगह पे, तो एक्स मुझे मिल जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू द एंड एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो 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 चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हो गया क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इज दैट इक्वल्स टू 1, इज इट सो, इज इक्वल टू 2, या इट्स वेरी सिंपल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करो। अब 75th क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, खुद से कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करो, दैट्स इट, डन, योर आंसर इज डन। ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो, सी दैट यू विल ईजिली गेट द आंसर विद इन मे बी 3 स्टेप। हाँ, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ठीक से पुट करो। इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो प्रॉपरली पुट करो एंड योर वर्क विल बी डन, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताता उसके बारे में। चलो 76 तो वैसे भी बैन है, सो बैन इन सेंस डिलीटेड सिलेबस है, 77 भी डिलीटेड सिलेबस है। एक्सप्रेस, हाँ, ये था क्वेश्चन जो मुझे एस्टरडे ओनली आई वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेस साइन टैन एंड कोसेक इन टर्म्स ऑफ सेके। तो देखो हमने एस्टरडे जो क्वेश्चन किया था वो साइन एंड कॉस में किया था। तो हमने क्या किया था, एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इन साइन एंड कॉस। तो साइन इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है एंड कॉस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसका हमने यूज़ किया था टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। लेकिन अगर किसी और रेशियो में है लाइक सेके एंड ऑल, तो इट बिकम्स बिट कन्फ्यूजिंग, बिट डिफिकल्ट। तो हम लोग देखते हैं अभी व्हाट आई वांटेड हियर इज कि आई वांटेड साइन थीटा इन सेके एंड ऑफ कोर्स tan theta in sec and cosec theta in sec. So all that I want in sec a. Sec a का मतलब क्या है, I want all that in cos a basically. Okay, cos का जो reciprocal है वो है sec a. तो if I bring everything in cos, that means you can easily replace that into the sec. That's the basic idea. ठीक है, तो करना क्या है, सबको cos में लाना है, उसके बाद sec में लाना है। रेडी, स्टार्ट करते हैं। तो साइन एंड कॉस में लाना तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो साइन ए हम लोग कॉस में ला सकते हैं,
राइट। कॉस में कैसे लाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अभी कॉस को सेक में कन्वर्ट करो, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, हो गया, दैट्स इट। इफ यू वांट मी टू सिंप्लीफाई इट, यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर जो नीचे है दैट आई कैन राइट इट एज ओनली सेक ए बाय टेकिंग रूट ऑफ इट, तो आई गेट रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यू माइट से दैट कि सेक स्क्वायर माइनस 1 एक फॉर्मूला है वो पुट कर दो, लेकिन हमें यू आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग इन सेक है, तो सेक में ला दिया, बस दैट्स इट। आपको फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। ओके, टैन ए, टैन ए को बेसिकली हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कर सकते हैं ना, साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो कॉस इज डायरेक्टली कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक है ना, राइट है ना। इधर दैट कर दो और ये वैल्यू पुट कर दो, और एक अनदर ऑप्शन है, टैन कैन बी डायरेक्टली रिटन इन फॉर्म ऑफ सेक। कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड बस रूट ऑफ दैट। देखो कितना इजी हो गया डायरेक्टली। एंड कोसेक ए, कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये इसको उल्टा लिख लो, अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट, हो गया, काम खत्म। ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चंस को ठीक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चंस हैं, तो चलो इसको प्रैक्टिस आप खुद से कर लोगे, आई नो दैट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 79 80 क्वेश्चन इज 80th इवेल्युएट टैन प्लस कॉट। साइन प्लस कॉस दिया हुआ है इज √2, ओके, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट टैन प्लस कॉट। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट इम्पॉसिबल लगता है जब बिगनिंग में देखते हैं हम लोग इसको। साइन कॉस को टैन कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इम्पॉसिबल, इट लुक्स इम्पॉसिबल। ओके, लेकिन है बहुत सिंपल, दो वे से कर सकते हैं। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन को साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करो। सो साइन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कैन आई गेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यूज इन दिस इक्वेशन? यस। हाउ कैन आई गेट? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इफ आई स्क्वायर दिस, आई गेट साइन स्क्वायर थीटा, directly I'm doing it, plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta is equal to 2, squaring the √2 as well. तो sin square theta plus cos theta 1 हो जाएगा, 1 उधर शिफ्ट हो गया तो 2 minus 1 1 हो जाएगा। So 2 sin theta cos theta is equal to 1 and 2 इधर शिफ्ट हो गया तो what is sin theta cos theta? 1/2. So that value if I put here, 1 upon 1/2 will be equal to 2 and that's the required answer there. ठीक है, तो हो गया, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन अभी, है ना। ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हमने 2-3 बार यूज़ किया है, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, 81st क्वेश्चन। Just what you have to do is you are supposed to put that value of x. The question number 1 हम लोग solve करें from 81. तो you have to just put the value of x into the given expression and y into the given expression. You get that equals to a square plus a square into b square. And same thing, a cosec theta, the same thing. Just go on putting, you will get the answer directly. Don't forget to take things common. That's it. अब बाकी कुछ नहीं बोलता। 82 देखते हैं। ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जैसे यहाँ पे साइन कॉस का क्वेश्चन किया था हमने, स्क्वायर बोथ द साइड। मिडिल टर्म जो 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आती है, वो टर्म आप लोगों को इसके स्क्वायर में पुट करनी है एंड यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, साइन एंड कॉस में है था वो क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट क्यों होते हैं, द रीजन वाई आई रिपीट एंड दैट टू in a different form, that question repeats so that you understand the concept and not the just question. Okay, so that's what I'm trying to do. नहीं याद है आ रहा है तो पिछले वीडियोस देख लो, वहाँ पे ये क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। इतना तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो ऑप्शन। ओके, डन, क्लियर। द नेक्स्ट वन देखते हैं, ये वाला 83rd वाला क्वेश्चन कुछ तो वियर्ड सा लग रहा है, मैंने भी ये इससे पहले नहीं देखा है। ओके, तो देखते हैं, लेट अस सी।
LHS लेते हैं, थोड़ा वियर्ड लग रहा है. तो इट इज़ कॉट क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस टैन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा. होल इज बीन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा plus sin theta the whole square. Basically denominator is same, so why should I unnecessary worry for it. तो इसलिए मैंने डायरेक्टली सेम कर लिया. तो ये ऊपर आ जाएगा. देखो कॉट इज कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, साइन क्यूब साइन क्यूब गेट कैंसिल, आई गेट ओनली कॉस क्यूब थीटा प्लस देख लो यहाँ पे दिस वुड बी tan is sin upon cos, cos cos get cancel, it is sin cube theta upon cos theta. I can expand this but I don't want to do that. Sin theta the whole square. Why I don't want to do that? Because if I expand this or if I use the identity here to factorize this, a cube plus b cube, it is cos theta plus sin theta into bracket cos square theta minus cos theta sin theta plus sin square theta. ये a cube plus b cube की आइडेंटिटी है अपॉन cos theta plus sin theta the whole square. The square and the complete term get cancelled, and that's the reason I did not expand it. This would be cos square theta plus sin square theta 1 minus cos theta sin theta, and whole has been divided by cos theta plus sin theta. Clear? Getting it? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको. लेकिन जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ और ही बोल रहा है, मतलब जो प्रूव करना है वो कुछ और ही बोल रहा है. लेकिन आपको ये इतना तो समझ में आ गया अभी तक कि ये एक्सपांड हो गया है ऑलरेडी, दिस इज़ बीन सिंप्लीफाइड. तो इसको और सिंप्लीफाई करने की अननेसेसरी कोशिश नहीं करते. इंस्टेड वी कैन टेक RHS. तो व्हाट इज RHS? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा. लेट्स गो फॉर 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा. अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. न्यूमरेटर में देखो ये करेक्ट आ गया क्या? ये 1 अपॉन है, बाकी सारे ये 1 एंड ये 1 भूल जाओ. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो ठीक से, हो समझ में आ गया नहीं कैसे आया यहाँ से यहाँ. दिस एंड दिस गेट कैंसिल एंड आई एम लेफ्ट विद द सेम थिंग. व्हाट इज हियर? यू कैन चेक दैट. दैट्स इट. आ गया. लगने के लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. डोंट वरी, डोंट थिंक कि वो डिफिकल्ट है एंड देन ये क्यूब है तो कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. ऑल दीज थिंग्स आर फुलिशनेस, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट. ये भी आप लोग कर लोगे. कोसेक को कॉमन निकालना मत भूलना एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ दैट यू हैव बिकम रियली वेरी गुड इन इट. 85th क्वेश्चन ये आपने रेगुलर क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त भी आपने खुद ने किया था, आई रिमेंबर दैट. तो चलो देखते हैं. आई एम सपोज टू प्रूव दिस. तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हम लोग लिखते हैं. पी स्क्वायर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1. It is p square minus 1 and p square plus 1 cosec square theta plus 2 cosec theta cot theta plus cot square theta plus 1. तो अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में cosec square theta minus 1 is going to be cot square theta. So cot square theta plus 2 cosec theta cot theta plus cot square theta. एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो कोसेक स्क्वायर थीटा. देखो फॉर्मूला जो बन रहा है वही लिखेंगे हम लोग. प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. नीचे जो आ रहा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा. तो डोंट यू थिंक ये आएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा into cot theta. Can I take things common? Like in the numerator I can take 2 cot theta common. I am left with cot theta plus cosec theta divided by 2 cosec theta common from the denominator. I am left with again cosec theta plus cot theta, and that's get cancelled and I am left with cot theta
अपॉन कोसेक थीटा. इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस यू गेट दैट इक्वल टू कॉस थीटा. तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं. दैट्स इट. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. 86 क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है, बट फिर भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो. दोनों को सिंप्लीफाई करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो. साइन कॉस में कन्वर्ट करो चलेगा, लेकिन मुझे पूछो तो ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको ठीक से समझ पाओ तो. कैसे सिली क्वेश्चन है देखो. LHS लिया, टैन को मैंने साइन को 86 आई एम सॉल्विंग राइट 86. टैन को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कन्वर्ट किया प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. If I take sin theta common from the numerator and the same from the denominator, I get 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta. If I take common from the numerator, 1 upon cos theta minus 1. Sin get cancel. What is 1 upon cos theta? Sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. देखो कितना सिंपल है. हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो एंड देन यू आर सॉल्विंग इट, देन ऑल्सो दैट विल कम इफ यू प्रॉपरली सिंप्लीफाई द RHS एज वेल. सो दैट्स इट. सो वेरी सिंपल. देखो 86 क्वेश्चन हो गए, फटाफट हो रहा है, फटाफट अपना काम हो रहा है. बस आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. देखो m स्क्वायर प्लस, ये भी इजी क्वेश्चन है. m स्क्वायर प्लस m को स्क्वायर करो, n को स्क्वायर करो, ऐड करो, यू गेट योर आंसर. ओके, कॉमन निकालना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, कॉमन तो निकालना है. 88 क्वेश्चन खुद से आपको करना पड़ेगा ये. कम ऑन. 88 क्वेश्चन, चलो देखते हैं 88 क्वेश्चन कैसे करेंगे. इट्स नॉट दैट ईजी, नॉट दैट ईजी, बट नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल. सो व्हाट आई कैन टेल यू इज़, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको दो वे से कर सकते हैं आप लोग. कॉस स्क्वायर है ये, डोंट मिस दैट. 1 माइनस tan is sin upon cos, sin theta upon cos theta, plus this will be sin cube theta upon sin theta minus cos theta. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऊपर चला जाएगा cos, तो ये आएगा cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा. तो इट्स वेरी क्लियर कि आपको ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, इसका रिवर्स हो सकता है बाय टेकिंग साइन हियर माइनस. तो वही आइडिया है, यहाँ पे भी कर सकते हो खुद से अभी. तो ये आएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा. तो अभी ऊपर जो आएगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आएगी, नीचे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर ईजिली. ईजिली मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी इसके बाद तो कुछ नहीं है. देखो कितने सिंपल सिंपल स्टेप है. जो बिगिनिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं. ठीक है. 89 90 89 आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है. 90 भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है. एंड आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन रेगुलर वर्क एज वेल. ओके, 91 भी हमने सॉल्व किया हुआ है. कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. चलो रूट है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, चलो मैं कर देता हूँ. ये ऐसे कर सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है. प्लस ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा. ये साइन की जगह पे सेक आता है कभी कभी. ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर किया तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा. लेकिन न्यूमरेटर में रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब वहाँ पे रूट नहीं जाता है. डिनोमिनेटर में नहीं जाता है. न्यूमरेटर में रूट गेट कैंसिल बिकॉज द टर्म्स आर सेम, वेर एज इन द डिनोमिनेटर द टर्म्स आर नॉट सेम, सो रूट वोंट गेट कैंसिल. इट्स लाइक रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी इक्वल टू 2, बट रूट 2 इंटू रूट 3 विल बी इक्वल टू रूट 6. तो यहाँ पे रूट जाता है, यहाँ पे रूट नहीं जाता है. तो वी डोंट आस्क हियर कि वाई द रूट वोंट गो हियर. द सेम थिंग हियर एज वेल. ठीक है, ये समझ लो, समझो पहले, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. तो वी हैव साइन गेट कैंसिल द 2 अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच विल बी 2 अपॉन कॉस थीटा. हो गया. क्या बताऊँ आपको, एकदम सिंपल. 92nd क्वेश्चन, ये आपने खुद से किया हुआ क्वेश्चन है आपके वर्कशीट में, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, खुद से कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, रियली वांट टू ट्राई, बट फिर भी मैं सिखा देता हूँ. साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा. देखो टेक्स्ट बुक के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसमें. ओके, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग किया तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1, ये आएगा 1, क्योंकि कोसेक इज 1 अपॉन साइन, तो 1 आ जाएगा, मतलब ये बेसिकली 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 2, कोसेक सेक वैसे रखते हैं, ये आएगा 2, ये जो है ये प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 5 कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर हो गया। दैट्स इट, ईजी था ना, इट्स सो वेरी सिंपल। देखो कितना ईजी है, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी ईजी। ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई। 93rd क्वेश्चन, अगेन not easy, but I can expect you to complete it. I really can do that. See whether it is possible for you or no. करना क्या है, देखो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला अगर आप लोग पहले वाले मतलब 93rd के पहला वाला एक्सपांड कर सकते हो, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे, आराम से इक्वल आ जाएंगे, बस आपको ये ठीक से एक्सपांड करना आना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, हाँ 94th क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग उसके जैसे सारे क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके जैसे सारे जो क्वेश्चन है वो एक साथ करेंगे हम लोग। चलो अरे यार ये टैन 96 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी के अभी। 98 भी डिफ़िकल्ट है, चलो ये इजी है। 95th क्वेश्चन में आपको टैन दिया हुआ है, यूजिंग टैन you can find all the values basically using your triangle kind of property. You remember that triangle का property use करो, and then you can get the common multiple ratio as x and or k maybe, and then you can get all the ratios, and then you can put that value into these expressions and get the answer done. That's it. लेकिन 96 is not that easy, तो 96 में solve करता हूँ। आपको दिया क्या है 96 में, your given is sec theta plus tan theta is equals to 1 upon p, and you have to show that sec theta minus tan theta is equals to 1 upon p. अच्छा उल्टा is given that it is equals to p, and you are expected to prove that sec theta minus tan theta is equals to 1 upon p. ये समझ में नहीं आता कैसे करेंगे, समझ में ही नहीं आता, तो राइट नाउ ऑल्सो यू मस्ट बी कन्फ्यूज कि इसको सॉल्व कैसे करना है, isn't it? अरे ये सिंपल सा कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप बोलोगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बताता हूँ। तो ये अपॉन 1 है, देखो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन आप लोग रैशनलाइजेशन जैसे मत कंसिडर करो, रैशनलाइजेशन इज डन ओनली इन द न्यूमरेटर, ओनली इन द डिनोमिनेटर, बट इट्स अ कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन विच नीड नॉट टू बी डन इन द डिनोमिनेटर, इट कैन बी डन इन द न्यूमरेटर एज वेल। सो दैट्स अ बेसिक कन्फ्यूजन पीपल हैज गॉट कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन ओनली इन द डिनोमिनेटर, वैसे नहीं होता है। ओके, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये कॉन्जुगेट पेयर है, इसको देखने के बाद आपको वही समझ में आना चाहिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू पी आया, ऊपर तो 1 आएगा, ये तो पता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी, दोनों का रेसिप्रोकल करो, आपका आंसर आ गया, राइट। तो व्हाट डू आई हैव नाउ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, दोनों को ऐड कर दिया, टैन टैन गेट कैंसिल, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 अपॉन पी विच वुड बी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, 2 भी इधर शिफ्ट हो गया, सेक थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये आ गया मेरा आंसर जो मुझे पूछा है। अरे रे हाँ, सेक पूछा है, सेक का उल्टा कॉस आ जाएगा, एंड एक बार कॉस मिल गया मुझे, आई कैन गेट द साइन एज वेल, कैसे मिलेगा, देखो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, एंड व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, राइट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p रेज़ टू 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1, तो उसको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई एम गोइंग टू गेट
पी रेस्ट टू 4 प्लस 2p² प्लस 1 माइनस 4p² अपॉन p² प्लस 1 द होल स्क्वायर। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चलेगा अभी शॉर्ट में, ठीक है। ऊपर जो आएगा वो p² माइनस 4p² सॉरी माइनस 2p² ये एडिशन प्लस 1 अपॉन p² प्लस 1 द होल स्क्वायर। ऊपर आएगा p² माइनस 1 द होल स्क्वायर, अब नीचे आएगा p² प्लस 1 द होल स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑफ द साइड आई गेट p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1। दैट्स आइडिया क्लियर। देखो इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्रिटिकल है, डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको स्टार दिया है। तो कर सकते हो आप लोग खुद से भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन तो यही किया था हमने, 66 और 67 क्वेश्चन वही किया था। 90th क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्सपेक्टिंग यू टू ट्राई। दोनों को सिंप्लीफाई करो, LHS एंड RHS दोनों को सिंप्लीफाई करो जैसे हो सके, साइन कॉस में सब कुछ कन्वर्ट करो। आई थिंक यू विल गेट योर आंसर। दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। 99th क्वेश्चन देखो, 99th क्वेश्चन भी थोड़ा सा वियर्ड सा है। sec a प्लस tan a एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू प्रूव बोथ द साइड एज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सर्च करो इसके बारे में, आई वुड से। ओके, आई डोंट वांट आई टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन, आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, तो हाँ ऑफकोर्स आपको ट्राई करके तो ये नहीं आएगा, मुझे श्योरली गारंटी है। वॉट यू कैन डू इज यू कैन सर्च दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, सर्च करके देखो कि आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलता है क्या। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर मैं बता दूंगा आपको। ओके, वाई आई वॉन्ट यू टू सर्च दिस क्वेश्चन, द रीज़न वाई आई वॉन्ट यू टू सर्च दिस क्वेश्चन इज इफ़ आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, यू विल गेट कन्फ्यूज। तो खुद से जब आप लोग सोल्यूशन देख के सर्च करोगे, सोल्यूशन देख के आपको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद अगर मैंने समझाया थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। एनीवे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, इसको कैसे सॉल्व करना है? अरे सिंपल सी बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये अपना ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो, 3/4 वाला। ये थीटा है तो 3/4, 3 एंड ये 4, तो ये कुछ तो √7 वगैरह कुछ तो आएगा, √7 आएगा मुझे लग रहा है ऐसे कि ये √7 आएगा। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 ये √7 आएगा। तो अभी कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सारी चीज़ें इसमें से पुट कर दो एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे है, तो all the values if you put and if you simplify it you will get the answer, get your answer। हाँ of course things are not that easy to solve, to simplify, तो try तो करना ही पड़ेगा, there is no option। okay, done, almost we have reached to the end now। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रह गए, तो हम लोग पहले 105th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने बोला था कि मैं एक साथ लूँगा, 105 इट इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 टू बी मेड इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वेर एज कुछ और क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, वो कहाँ गया, ये रहा। तो हमें करना है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा -1, इट सपोज टू बी इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, देखो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये जो 1 दिख रहा है इस 1 को सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो आई गेट tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इफ़ यू रिमेंबर यू विल अंडरस्टैंड, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। जो न्यूमरेटर है ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है ये फिर से 1 लिखने में कोई पॉइंट नहीं है, तो व्हाट आई हैव टू डू हियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू अदर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो नीचे आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा -1, इज इट? कुछ +1 होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। If I take common, that is tan theta plus sec theta from the numerator, left with 1 minus of sec theta, मतलब 1 minus sec theta plus tan theta। हाँ वही मुझे गलती लगी थी, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अपॉन tan theta माइनस sec theta प्लस 1।
तो ये जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट कैंसिल, आई एम लेफ्ट विथ सेक थीटा प्लस साइन थीटा विच इज आस्क्ड हियर। ओके, स्मॉल एरर क्वेश्चन में प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक दिस रिक्वायर्ड चेंज कि ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, ओके ये +1 है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस रिक्वायर्ड चेंज। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ओके डन, ये हो गया, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजंट इट। यही क्वेश्चन अगर साइन एंड कॉस में आया तो हाउ इज़ दैट इन केस इफ इट कम्स इन साइन एंड कॉस, बट बेसिकली आपको प्रूव क्या करना है, इट इज़ कोसेक एंड कॉट ही प्रूव करना है। तो व्हेन इट कम्स टू कोसेक एंड कॉट अगर आपको करना है तो इसको भी कोसेक कॉट में कन्वर्ट करो। साइन एंड कॉस में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली, हो सकता है लेकिन उसके लिए अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो आई डोंट वांट यू टू यूज़ डिफरेंट मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसेक एंड कॉट ही तो करना है मुझे, जैसे यहाँ पे साइन एंड यहाँ पे सेक एंड टैन किया था, वहाँ पे यहाँ पे कोसेक कॉट करना है, तो इसका मतलब एवरीथिंग शुड बी कोसेक एंड कॉट। तो डिवाइड बाय साइन, तो इसको मैं साइन से डिवाइड करता हूँ और इसको भी मैं साइन से डिवाइड करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट कोसेक एंड कॉट। तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा अपॉन अगेन कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा। तो इस 1 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, उधर शिफ्ट कर देता हूँ इन सेंस आई विल रीअरेंज इट। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, और इस 1 को हमें रिप्लेस करना है, बाकी प्रोसेस रिमेन सेम। हाँ, इस 1 को अभी हमें रिप्लेस करना है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से, दैट्स इट, डन। आई होप योर आइडिया क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। देखो कितने ईजीली वी कुड एबल टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन, मोर देन 100 क्वेश्चन रादर आई कैन से। बाकी भी क्वेश्चंस है, देखो अभी 102 क्वेश्चन ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, आपके वर्कशीट में ये क्वेश्चन है। तो ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई डिड नॉट पर्पजली टेक इट, ओके। नाउ इफ़ यू टेक और इफ़ यू कंसिडर सेकेंड वाला 101 क्वेश्चन, ये भी हमने किया हुआ है, बस 5 की जगह पे थीटा था, तो यू कैन फाइंड आउट। तो देखो 1 इज tan ऑफ 45, तो tan ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू 45 एंड यू कैन गेट द आंसर डन। या यहाँ सॉल्व फॉर थीटा है तो एक रेशो में लाना है, तो यू कैन ईजिली गेट द आंसर, इजंट इट, ईजिली गेट द आंसर। ये 9/30 आंसर नहीं है, एक आंसर 9 है दूसरे का आंसर 30 है। सो दैट्स इट। आपको मतलब बेसिकली आई कैन से दैट नाउ यू कैन focus on all these questions and try to solve the other questions as well, those which I did not take it. Of course 99th question if you want me to tell you, I can tell you that as well, no problem. तो चलो वो भी कंप्लीट कर देते हैं, सो दैट अपना ये खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। आई डोंट हैव टू अगेन जंप बैक टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो सब कुछ अभी खत्म हो गया, बस करना क्या है आप लोगों को, और एक चीज़ आपको ठीक से करनी है, दैट इज़ नथिंग बट टेक्स्ट बुक। अदर देन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज नथिंग बट टेक्स्ट बुक। देखते हैं, चलो। आई नो दैट सेक ए प्लस टैन ए इंटू ब्रैकेट सेक बी प्लस टैन बी इंटू ब्रैकेट सेक ऑफ सी प्लस टैन ऑफ सी इज इक्वल्स टू ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वल टू है ना वो इस तरफ लेके आते हैं, सो दैट ऑल दैट इक्वल टू 1 रह जाएगा, ठीक है। तो मैं वो अननेसरी और एक स्टेप इतनी बड़ी नहीं लिखता। तो ऑल दैट इफ आई शिफ्ट हियर तो आई गेट दैट इक्वल टू 1 अपॉन ये आएगा सेक ए माइनस टैन है सेक ऑफ बी माइनस टैन बी एंड सेक ऑफ सी माइनस टैन ऑफ सी, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, ये तो गिवन है, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से, चलो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से, तो ऊपर आएगा सेक ए प्लस टैन ए द होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट शोइंग दैट कि कॉन्जुगेट से कैसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे तो 1 आएगा, ये आएगा सेक बी प्लस टैन बी द होल स्क्वायर, और ये आएगा सेक ऑफ सी प्लस टैन ऑफ सी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देख लो अभी टेक रूट ऑफ बोथ द साइड, तो व्हाट डू आई गेट, सेक ए प्लस टैन ए सेक बी प्लस टैन बी एंड सेक ऑफ सी प्लस टैन ऑफ सी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। तो ये अगर प्लस और माइनस 1 है तो दूसरा वाला पार्ट भी प्लस और माइनस 1 होगा, दैट्स इट। कितना ईजी है देखो। हाँ, लेकिन वो लगने के लिए जब हम लोग एक्चुअल सॉल्व करते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको अभी पता है कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन क्या है, सो इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। ओके, तो हो गया आंसर डन। लेकिन देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि आपको खुद से इसको समझना था. आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड ऑल बाई योर सेल्फ, बट ठीक है. एनीवे, चलो, बहुत सारे अभी और भी क्वेश्चन है जो आपको आज करने हैं, तो कंप्लीट कर दो आज, सो दैट विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days वी विल प्लान फॉर द टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो आज के आज सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दो. आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा फोकस तो 100% टेक्स्ट बुक ही रहेगा. 100% टेक्स्ट बुक रहेगा, तो 50% टेक्स्ट बुक एंड 50% फ्रॉम दिस शीट. This will be my proportion of questions in the examination paper. This will be my proportion, 50% from the textbook and 50% from the worksheet. That's it. So thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.